Yes, sir. Yes, sir. So good evening to all. So let's start. Our today's topic is regarding the discussion which we had in the headquarters. Today we have submitted the assignment copy, okay, in headquarters, and we had also shared few points with the headquarters which were related to the result of September 2020 Viva exam which was scheduled, the project work, and the assignment error which due to which the student has scored the 0 marks. So we will discuss one by one. So which language is preferable? English, Hindi, Marathi? Guru, Vaibhav, Any, sir. Any language. any Any language. language. Let's Any let us. language, sir. Okay, fine. Let us have an interactive session so that we can share our knowledge, whatever we have with us. Okay. So first we'll start. First of all, I would like to tell you that I'm recording this session so that this session will be useful for the other members also, and I'm also going to upload this video on YouTube also, so that the student who have missed this meeting they can go through this video. Okay. So first topic is regarding the 0 mark. So this 0 marks in result, there are two reasons due to which the student has achieved the 0 marks. One is that he has not attended the online exam. There may be n number of reasons. Okay, he has not appeared. Otherwise, he has not submitted the answer sheet at the last moment. One of the student, he has said me frankly that while appearing for the online exam, there was a power cutoff due to which he was not able to submit it. So such issues, because of such issues, the record is not saved with the III. Okay, the marks are obtained only after we submit the assignment and the online paper. Okay, so there is 80-20 principle which they are using. So the theory paper which we are giving, so online paper which we have given, so all the marks achieved in online exam is converted into out of 80, and assignment marks are converted from out of 140 to 20. So we do the calculation of both marks and we get the total score out of 100. Okay. For example, if a person in theory he gets 80 marks out of 100. So out of 80, he will get 64, 65 marks, 80% of 80 marks. And assignment out of 140, if he gets 100 marks, it will get converted into out of 20, how much he has gained. The total summation of theory and assignment copy, the total, that number will be declared in exam result. Okay. So I have gone through the complete process. They have a very systematic way through which they have collected all the data, assignment as well as online assignment. For each subject, they have delegated one examiner. All the assignment which we have submitted according to the examiner nominated, all papers will go to the examiner. So the result, complete result का जो decision है वो examiner के हाथ में दिया हुआ है. He will go through the online exam mark as well as the assignment paper. Okay. So वो जो process है वो process मैंने देखा, it is clear, it was foolproof. I have also cross checked few members whether उन लोगों का online exam का marks दिख रहा है क्या, तो उनका दिख रहा था. तो system में technical जो issue हमको लग रहा था वैसा कुछ नहीं है, लेकिन assignment में कुछ errors हमें जरूर मिले. For example, the errors which we have seen in assignment was the student has not respected the guideline of assignment. For example, in assignment all questions were compulsory. So few members have mentioned out of 8 questions they have just wrote 7 question or 6 question. They have missed one question. Okay, so such things examiner has directly declared 0 marks because he has not adhered to the guideline. Second was that student has wrote the assignment incomplete. Second, third reason was the membership number was missing. Fourth reason was the number which was mentioned on the membership number which was not clear whether he has mentioned it as 5 or 8. पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था कि 5 है क्या 8 है. So वो एक इशू है. उसके बाद में no front cover. Student वो mandatory है, each student has to submit the front cover
and his assignment. Okay, and all the details. In the complete details, the membership number is very important and subject name is very important. तो वो कई सारे स्टूडेंट से गलती हुई है. ठीक है. Next was sixth reason was the copied assignment. One assignment was copied by the 10 to 12 peoples. सिर्फ नाम अलग अलग मेंबर्स ने वो एक सेम असाइनमेंट कॉपी, सेम स्कैन कॉपी लोगों ने अपलोड कर दी. ऐसे एग्जांपल्स मैंने खुद देखे हैं. तो जिसके वजह से एग्जामिनर को पता चला कि ये फ्रंट कवर का जो पेज है उसकी हैंडराइटिंग डिफरेंट है और स्कैन कॉपी की हैंडराइटिंग डिफरेंट है. तो ऐसे चीजों को एग्जामिनर ने कंसिडर किया नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट है, हाँ, कुछ हैंडराइटिंग ऐसी लिखी थी कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आया व्हाट ही हैज मेंशन. सो वो केस में भी वो एग्जामिनर ने वो आंसर कंसिडर किया नहीं है. कुछ कुछ जगह पे गाइडलाइन क्या बोलता है कि असाइनमेंट लिखते समय आप सीक्वेंस फॉलो करो. फॉर एग्जांपल, देयर आर 8 क्वेश्चन, सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8. Many students have done, they have followed question number 1, 2, 4, okay, 4, 6, 7, 8, and 3 and 6 they are mentioned at the last. So that was not acceptable. तो एग्जामिनर को जो गाइडलाइन दी थी हेडक्वार्टर ने, वो उसने रिस्पेक्ट किया है. ओके, तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से एरर हुआ है. ओके, और रिजल्ट एग्जामिनर के हाथ में दिया हुआ था. और जो सिस्टम थी उस सिस्टम में गूगल ड्राइव में क्लियर कट सब्जेक्ट कोड जो असाइनमेंट हम लोग अपलोड करेंगे कर चुके थे ट्रिपल आई को, तो वो सीधा एग्जामिनर को जा रहे थे. उसका एडिटिंग ऑप्शन वाज आल्सो नॉट विद हेडक्वार्टर. ठीक है, वो लिंक मैंने देखे. तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट में था वो नहीं है. ठीक है. और सेकेंड थिंग, एक्सपेक्टेशंस. असाइनमेंट लिखते समय इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशंस है कि फ्रंट कवर जो है वो मैंडेटरी चाहिए. सेकेंड थिंग है आंसर शीट सब सीक्वेंस में होने चाहिए. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. क्वेश्चन भी लिखने चाहिए. अभी 80% लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2A और लिखा है और आंसर 2A लिखना चालू किया. तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्वेश्चन एंड आंसर भी है. लेकिन इस टाइम जो स्टूडेंट ने सीधा आंसर लिखा है तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है. नेक्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे या लिखेंगे, उन लोगों ने ये इंश्योर करना है कि वो क्वेश्चन भी लिखे और फिर उसके नीचे आंसर भी लिखे. ओके. सेकेंड थिंग, असाइनमेंट रीडेबल हो. ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग हो. These are the expectations from the assignment topic. Okay. Once result is declared. Okay. कुछ असाइनमेंट मेरे पास आई है जिसके अंदर जो मिस्टेक्स जो मैंने अभी बताया कि स्टूडेंट लोगों से गलती हुई थी, उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास है. आई हैव द स्क्रीनशॉट एंड सच असाइनमेंट बिकॉज ऑफ व्हिच द एग्जामिनर हैज गिवन 0 मार्क. तो एग्जामिनर ने 0 मार्क दिए सबमिशन में, असाइनमेंट में, लेकिन उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिजल्ट पे हुआ. क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं देंगे, असाइनमेंट लिखेंगे तो भी 0 मार्क है. अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लिख रहे हो और असाइनमेंट नहीं दे रहे हो तो भी आपको 0 मार्क है. इट इज वेरी वेरी क्लियर. ठीक है. तो जो भी एविडेंस मेरे पास अभी है, वो एक बार रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो अभी सितंबर 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, टेंटेटिवली 10th ऑफ जनवरी तक वो डिक्लेयर हो जाएगा. उसके बाद मैं वो एविडेंस की वीडियो लोगों तक पहुंचाऊंगा या यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट विल नॉट मेक सच मिस्टेक. आई विल इंश्योर कि वो स्टूडेंट के नाम पब्लिश ना हो, लेकिन उन्होंने जो गलती की जिसके वजह से सबको भुगतना पड़ा, वो सारी चीजें मैं एस्केलेट करूंगा या शेयर करूंगा. ठीक है. ओके. रिजल्ट के बारे में मैंने बताया कि 100 मार्क्स में से वो 80% थ्योरी है, 20% अपना ओवरऑल असाइनमेंट के ऊपर है. ओके. सेकेंड टॉपिक वाज दी वाइवा एग्जाम. तो ठीक है, वाइवा एग्जाम के लिए जो 4 बैचेस थे उनके रीशेड्यूल वाइवा की शेड्यूल भेजे हुए हैं हर स्टूडेंट को गए. उसमें कुछ स्टूडेंट स्टिल बाकी है, उनके भी सर्कुलेट किए जाएंगे. ठीक है. तो अगर आप फोन करके पूछोगे तो वहां पे फोन पे आप देखो तो वहां पे एक लिस्ट रेडी है, तो आपको बताएंगे कि आपको कब तक आ जाएगा करके, टेंटेटिवली डेट आपको बताएंगे. तो जिनका जिनका वाई वाई का पीपीटी सबमिट हुआ है एंड दे आर वेटिंग फॉर वाई वाई, सच स्टूडेंट they can confirm with the triple I by just doing a phone call. Okay, nothing to worry. ठीक है, शेड्यूल हो चुके हैं और जो पेंडिंग स्टूडेंट है उनके भी मैक्सिमम 10 तारीख तक खत्म करेंगे. ये टेंटेटिव डेट है जो आज मुझे मिली है. ओके. नेक्स्ट इज
लास्ट टाइम जो कम्युनिकेशन था कि 31 दिसंबर तक सब वाई खत्म करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो डेट अभी एक्सटेंड हुई 10 जनवरी तक। ओके, हाँ, कन्वोकेशन जनवरी में ही होगा। तो जो जो स्टूडेंट लोगों को वाई क्लियर किया है, जिन्होंने प्रोविजन सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, वो ऑल स्टूडेंट हैव टू इंश्योर दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट कन्वोकेशन में हो। ठीक है, ये सब लोगों को रिक्वेस्ट है। कन्वोकेशन होगा हेडक्वार्टर में ही, तो मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। टेंटेटिवली 300 to 350 इंजीनियर्स इस साल ग्रेजुएट ट्रिपल आई से होंगे। ओके, नेक्स्ट वाज दी समरी ऑफ पेन एरिया। ओके, कुछ स्टूडेंट लोगों ने जो पेन एरिया बोला था उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, तो ट्रिपल आई के कुछ मेंबर्स वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हर एक स्टूडेंट को लॉगिन आईडी दें, ताकि हर स्टूडेंट अपना अपना पूरे डिटेल्स उसके खुद के लॉगिन और पासवर्ड से देखें। तो ये चीजें इन प्रोसेस है, दे आर डूइंग इट, वो उनके प्लान में है। होगा ही ऐसा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना चालू किया है, ताकि हर स्टूडेंट के पास लॉगिन आईडी हो और उसने क्या क्या सबमिट किया। अगर उसने असाइनमेंट कॉपी किया तो ही विल गेट द स्टेटस अपडेटेड इन हिज लॉगिन आईडी। ओके, तो जो कम्युनिकेशन गैप अभी हो रहा है वो कम होने की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, सेकेंड थिंग, कई सारी चीजें हैं जो पेन एरिया स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये जो वीडियो अभी यूट्यूब पे डालूंगा, उसके नीचे मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें सर्वे रिपोर्ट है, जो आपने बेस्ट एक्सपीरियंस लिया ट्रिपल आई से, वो कुछ डिटेल्स आपको भरना है। साथ ही साथ में क्या पेन एरिया आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ट्रिपल आई में, और जिसके ऊपर ट्रिपल आई का सपोर्ट चाहिए वो इसमें मेंशन करो। आई विल ट्राई व्हाट कैन बी डन फ्रॉम माय साइड, और जो मैनेजमेंट के हाथ में, ट्रिपल आई के हेडक्वार्टर के हाथ में है, वो लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ, विशुअल थैंक्स टू ट्रिपल आई। एक्चुअली ट्रिपल आई के केस में सीबीडी एरिया जो था, जब हमारा एग्जाम शेड्यूल हुआ था अगस्त का, तब कोविड वाज ए डेंजर कंडीशन इन दैट एरिया, पूरा एरिया रेड जोन में था। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव टेकन दी ऑनलाइन एग्जाम, और स्टूडेंट लोगों के 6 महीने बचा है। दैट वाज द गुड थिंग विच दे डिड, वी शुड अप्रिशिएट देम। ओके, लेकिन जो अभी रिजल्ट की वजह से गड़बड़ हुई है, तो हमने जब उनसे बात की है, सब स्टूडेंट लोगों ने बात की, तो उनसे अच्छा रिस्पॉन्स आया। जिन जिन लोगों ने एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम सबमिट किए हैं, उसके रिकॉर्ड उनके पास है, और अभी जो सबमिशन दिया और उनके रिकॉर्ड से अगर मैच होते हैं, तो उन स्टूडेंट का रिजल्ट एडिट होके 10 तारीख तक आ जाएगा। 10 तारीख के 22 डेट है। ओके, कई सारे स्टूडेंट आज टाटा मोटर्स से भी आए थे, उन्होंने भी हार्ड कॉपीज उनके पास सबमिट किए, which will be validated by the एग्जाम कंट्रोलर। हर एक बंदे का रिकॉर्ड, जो उसने एग्जाम दिया उसका रिकॉर्ड और असाइनमेंट का रिकॉर्ड मैच हो रहा है कि नहीं, वो देख के वो कंसिडर करेंगे। अगर बाय चांस हैंडराइटिंग डिफरेंट है, ऑनलाइन सबमिशन करते समय असाइनमेंट डिफरेंट है और अभी डिफरेंट है, ऐसा कुछ अगर मिलता है, दैट विल नॉट बी कंसिडर। सो एग्जाम कंट्रोलर इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू डू दी गुड फॉर दी स्टूडेंट। ओके, उसमें जो जो ईमानदारी से किया है, जिसके रिकॉर्ड से उनके रिजल्ट्स चेंज होने की संभावना ज्यादा है। ओके, और रही बात एग्जाम की, एग्जाम फरवरी 2021 की, वो एग्जाम भी शेड्यूल है। वो भी शायद जैसे पहले ऑफलाइन एग्जाम होती थी, जैसे पुणे में वाडिया कॉलेज में होती थी, वैसे होने की चांसेस है। लेकिन अगर कोविड सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहा, तो इन दैट केस, उस केस में तो हो सकता है कि वापस ऑनलाइन एग्जाम पे जाए। ठीक है, वो उसके बाद का जो फरवरी अगस्त 2021 का है, वो ऑफलाइन ही रहेगा। तो करंट कोविड की सिचुएशन देखते हुए वो एग्जाम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने सब पोर्शन कवर किया, वाई वाई का भी किया, कन्वोकेशन का भी किया, असाइनमेंट एरर का भी किया, साथ ही साथ में एग्जाम फरवरी का भी किया है। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। सुशांत, गुरु, श्रीकांत, अनिता, निशित, वैभव, प्रशांत, any other thing you can ask? Yes, Guru. यस सर। Yeah. अभी जैसे आपने बताया कि कुछ कम्युनिकेशन गैप्स है कि जहाँ पे सबमिशन के, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन रहने दो या फिर ऑनलाइन एग्जाम रहने दो, ट्रिपल आई की तरफ से हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। जो अभी के केस में हुआ है कि किसी को कुछ स्टेटस मिला ही नहीं है।
उसने सबमिट किया है नहीं किया है, इसका एविडेंस एक तो स्क्रीनशॉट के ऊपर कोई लोगों के पास है, कोई कुछ स्टूडेंट के पास नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप की बात है, यहाँ पे ट्रिपल की तरफ इम्प्रूवमेंट होने वाली है, ऐसा आपने बोला है। हाँ, लेकिन अभी इसमें जो रिजल्ट जो लगा हुआ है उसके बाद बहुत सारे कम्युनिकेशंस आए कि हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी या मेल पे भेजना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है। तो कोई हार्ड कॉपी भेज रहा है, कोई पर्सनली जाके वहाँ पे सबमिट कर रहा है, ये बातें हो रही है। लेकिन इसके बाद भी अगर जो 10 जनवरी को जो रिव्यू होके जो दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तरफ से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हमने किया है या हमने सबमिट किया है, वो वहाँ पे रिसीव्ड है और रिजल्ट विल गेट चेंज। कैसे कन्फर्म होगा अभी? ओके, क्योंकि बाद में फिर मिसप्लेस या मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो सकता है। तो गुरु, सबसे पहले आपने बोला कि कम्युनिकेशन गैप है विद इन स्टूडेंट एंड ट्रिपल आई, लेकिन जो इशू अभी हुआ है दैट वाज बिकॉज ऑफ द एरर फ्रॉम द स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट के एग्जाम्पल और एविडेंस मैं आपको विथ एविडेंस शेयर करूंगा। एक बार रिजल्ट लगने दो, मैं यूट्यूब के ऊपर वो एविडेंस शेयर करूंगा, एक एक सैंपल जिसके वजह से गलती हुई। मैं और एक बार दोहराता हूं, लोगों ने फ्रंट कवर अटैच नहीं किया। सेकेंड थिंग, सीक्वेंस में आंसर नहीं लिखा, क्योंकि हेडक्वार्टर ने एग्जामिनर को गाइडलाइन दी और वो एग्जामिनर उस गाइडलाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने चाहिए, लेकिन आज इस टाइम क्या हुआ है कि आप आंसर भी लिख रहे हो तो कंसिडर किया जा रहा है। ओके, उसके बाद में मेंबरशिप नंबर नहीं लिखा है। ऐसे जो एविडेंसेस है मेरे पास भी है, वो एविडेंसेस मैं शेयर करूंगा एक बार रिजल्ट होने के बाद, मैं यूट्यूब पे डालूंगा। सेकेंड थिंग है, अभी जो स्टूडेंट सबमिट कर रहा है तो उसके पास स्क्रीनशॉट आ रही है कि मैंने सबमिट किया, लेकिन वो कॉमन है, तो ये पॉइंट नोट डाउन किया हुआ है। उसके ऊपर अभी वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आइडिया है कि वो हर स्टूडेंट को लॉगिन आईडी दे दे। ओके, तो ये उनकी प्रोसेस में चल रहा है, तो दिस इज इन प्रोसेस कि हर ये जो गैप है कम्युनिकेशन का या सबमिशन का, अभी जैसे हम लोग कुरियर से भेजते हैं, तो कुरियर से भेजने का कुरियर की हम लोग ऑनलाइन चेक करेंगे तो हमें एविडेंस मिलता है, हाँ बाबा यस उन्होंने सबमिट किया है करके। लेकिन जैसे अभी ऑनलाइन का समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अभी वो उनकी प्रोसेस चल रही है, हाउ टू स्मूथ इट। ऐसे इशू होते हैं और रिजॉल्व करने के लिए ट्रिपल आई भी रेडी है। ओके, स्मॉल स्मॉल एरर्स की बात है। इसके अलावा आपने और क्या बोला था कि हाउ विल इंश्योर, हाँ, जिन जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर कट सबमिट किया है, विद इन टाइम सबमिट किया है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है ऑलरेडी ऑनलाइन के ऊपर, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भी उनको 0 मार्क अगर आते हैं, उन्होंने कॉपी नहीं किया हुआ, सब गाइडलाइन रिस्पेक्ट किया है, तो उन्होंने मेल करनी चाहिए थी। ओके, और जो लोगों को कॉन्फिडेंस है लेकिन फियर है, ऑन पॉजिटिव साइड क्या करे, इसके लिए उन लोगों ने मेल पे भेजा है और कोई कुछ लोगों ने हेडक्वार्टर में सबमिट किया, और जो हेडक्वार्टर में नहीं जा सकते उन्होंने कुरियर भेजा है। उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, आज जितने सारे लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किए, उन्होंने हार्ड कॉपी ओरिजिनल लिए नहीं, ओरिजिनल सिर्फ वैलिडेट किया, और जो आपने ऑनलाइन स्कैन करके भेजा है, अपलोड किया है, उसी की प्रिंट आउट उन्होंने आज लिया है। प्लीज मार्क दिस, जो स्टूडेंट ने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट किया, उसी की प्रिंट आउट उन्होंने लिया। जो जीरोक्स था उसके ऊपर उसने स्टार मार्क किया है कि जेरोक्स नहीं चलेगा, हाँ जेरोक्स नहीं चलेगा बिल्कुल भी, जेरोक्स का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, जेरोक्स नहीं चलेगा। सो इन शॉर्ट दे आर कंफर्मिंग वेदर ही हैज डन ऑनलाइन सबमिशन किया था कि नहीं। उसमें अगर झोल मिलता है तो दे विल नॉट कंसिडर, लेकिन हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखा और आंसर लिखा है तो ऐसी चीजें वो कंसिडर कर रहे हैं। मेंबरशिप नंबर लिखा है वो कंसिडर कर रहे हैं। हैंड राइटिंग अलग है, असाइनमेंट एक ही 10 लोगों ने लिखा है तो वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड रिजल्ट। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने पहुंचाया या नहीं पहुंचा, मेरा मेल डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, तो बेस्ट ऑप्शन है आप कुरियर कर दो। विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज में अगर पहुंचता है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 और 3 डेज के अंदर वो मिल जाएगा, और आपके पास वो एविडेंस भी रहेगा कि आपने कुरियर से भेजा है करके। आज जो असाइनमेंट सबमिट किया उन्होंने अटैच करके दिया कि यस रिसीव्ड करके स्टैम्प मार के लिया है, लोगों के नंबर भी नोट डाउन करके लिया है। आप और एक चीज कर सकते हो, वहां पे फोन करके आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहां पे आपका मेंबरशिप नंबर और सब्जेक्ट नंबर लिख दो, वो रिकॉर्ड रख रहे हैं ताकि वो वैलिडेट कर सके उस सर्वर के ऊपर या डी ड्राइव के ऊपर,
जो समरी रिपोर्ट है उसमें वो डाटा मिल रहा है कि नहीं, वो कंफर्म कर रहे हैं। जैसे आज मैंने एक स्टूडेंट का कंफर्म किया, तो उस स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उसका रिकॉर्ड मिला, लेकिन उसने ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं दिया। सेकेंड स्टूडेंट मैंने कंफर्म किया, तो उसका ऑनलाइन सबमिशन, उसका रिकॉर्ड नहीं है, कौन सा एग्जाम का। जब उससे बात की तो उसने बोला कि हाँ सर पावर ऑफ हो गई थी, इसके लिए मैं सेव नहीं कर पाया। ठीक है, सो आई वाज आल्सो गॉट, मैं भी उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ है स्टूडेंट लोगों से। ठीक है, और जो जो एविडेंस मिले हैं वो मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एनीथिंग एल्स इसमें सर ये अभी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो बातें हैं, इधर ऑनलाइन एग्जाम सबमिट नहीं हुई है जिसकी वजह से मार्क्स 0 है, या इधर असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई जिसकी वजह से 0 मार्क्स है। अगर ऑनलाइन एग्जाम सबमिशन किया है तो विद इन टाइम अगर सबमिशन किया है तो एंड में इधर थैंक यू मैसेज आता है, इधर यू हैव सबमिटेड द एग्जाम एंड इट हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसा एक मैसेज आया था तो जो मुझे मिला था आपको सबमिट करना ही है। एक्चुअली आपने सबमिट नहीं किया, पेज आउट हो गया, तो उसका उनका गलती नहीं है, ऐसे वो बोल रहे। सबमिट होना ही चाहिए तभी उनके पास रिकॉर्ड है। करेक्ट, आपके सबमिट करने के बाद भी आपको 0 मार्क है तो 100% सोल्यूशन मिलेगा। बट आपने सबमिट नहीं किया, कुछ आपका रिस्क ये है तो फिर बोल नहीं सकते। हाँ तो करेक्ट, लेकिन सबमिट करना चाहिए तभी रिकॉर्ड उनके पास रिस्पॉन्स हो जाएगा। हाँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा रिकॉर्ड सबमिट सही से हो गया है? मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने 100%। तो फिर आप घबराइए मत ना। हाँ, तो आप घबराइए मत, आपको कॉन्फिडेंट है आपने सबमिट किया है तो कुछ इश्यू नहीं है। जिसको कॉन्फिडेंस 100% सब लोगों को प्रॉब्लम मींस जिसने सबमिट करते समय कुछ पेज एरर आ गया, नहीं तो बैक बटन दबाने के बाद क्या क्या कुछ लोगों को है ना पेज आउट होता है, उसने सबमिट करने के बाद पेज आउट किया तो गलती से वो उसका कंसिडर नहीं होगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। गुरु मेरा एक सजेशन है आपको। गुरु हाँ एक सजेशन है, बोलिए कल ना। आप ट्रिपल को फोन करो, आपका मेंबरशिप हाँ नंबर बताओ, आपका जो 0 हो गया मार्क्स सर, वो हो गया। मेरा 2 बार कॉल हो गया है। हाँ, उन्हें तो नोट पहले डाउन किया कॉल सर। पे भी हाँ, उन्होंने पहले नोट डाउन भी किया है, ओके फाइन फाइन। उन्होंने और नोट डाउन भी आपने किया है। कुरियर भेजा है? तो मेरे हाँ तो वही ना मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे इन्होंने प्रशांत जी ने बोला कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप घबराइए मत, लेकिन हाँ घबराइए मत, लेकिन क्या है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि स्क्रीनशॉट नहीं है कि ये सबमिट हुआ है, लेकिन आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट, मैंने थैंक यू के मैसेज पढ़े हैं, रिकॉर्डेड है, विद इन टाइम सबमिट किया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते भी नहीं है, स्क्रीनशॉट वो जमा करके लेते नहीं। एविडेंट इतना ही है कि आपको ट्रिपल आई को आपका सबमिशन कंप्लीट देने का है। स्क्रीनशॉट किसी का भी लिया नहीं है, स्क्रीनशॉट आपका भी सेम है, मेरा भी सेम है। एविडेंट उनके पास है, सबमिट हुआ है नहीं हुआ है उनके पास पता है उनको। जिसका सबमिट हुआ है चलो ठीक है उनका ना। 100% मार्क मिलेगा, जिसका सबमिट नहीं हुआ उसको बोल नहीं सकते। ओके गुरु। हाँ तो वही ना कि अभी हाँ आपने विजिट किया है क्या वहाँ पे? यस हाँ यस। तो हाँ हाँ इन्होंने गुरु। विजिट किया तो ये यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि मेरा रिकॉर्ड है इनके पास, लेकिन जहाँ पे मैं नहीं, अभी अभी ये आपके कह केस रहे हैं में क्या कि होगा गुरु? आप कॉन्फिडेंट रहो। आपके हाँ केस में गुरु क्या होगा? अभी आपने नंबर दिया है ना, तो अभी आपका नंबर अभी कैसा हुआ था, हाँ पहले जो कंट्रोल था ड्राइव का, वो कंट्रोल सिर्फ एग्जामिनर के पास था। अभी एग्जाम कंट्रोलर के पास और ट्रिपल आई हेडक्वार्टर के पास वो कंट्रोल आ चुका है। ठीक है, अभी जो जो स्टूडेंट लोगों की कंप्लेन आ रही है, ठीक है, वो लोग उस टोकन नंबर से 2 रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। ठीक है, एक रिकॉर्ड उसने असाइनमेंट सबमिट की है क्या, पहला। ओके, सबसे पहली प्रायोरिटी वो दे रहे हैं कि उसने ऑनलाइन एग्जाम दी है क्या। अगर ऑनलाइन एग्जाम दी है और उसको उसमें पासिंग मार्क है, मेरे बात, अगर उसको पासिंग मार्क है आउट ऑफ 100 ऑनलाइन एग्जाम का, और उसने असाइनमेंट किए, तो वो कंसिडर हो जाएगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम में अगर उसको पासिंग मार्क कम है, फॉर एग्जांपल, जस्ट होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, मैं एग्जांपल बोलता हूँ। XYZ स्टूडेंट है, उसके एग्जाम के मैंने मार्क्स चेक किए। ओके, कि जस्ट टैली करने के लिए कि प्रोसेस क्या बोलती है, वेदर द प्रोसेस इज कंफर्मिंग और नॉट कंफर्मिंग। तो उस बंदे के एक सब्जेक्ट IEA 01 सब्जेक्ट में उसको 30 मार्क मिले। ओके, ऑनलाइन एग्जाम में। सेकेंड एग्जाम में 36 मिले, थर्ड एग्जाम में 26 मिले, सेवेंथ एग्जाम में 32 मिले। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट के रिजल्ट नहीं आएंगे, तो पास करके नहीं आएंगे, क्योंकि उसके ऑलरेडी कम है।
आपके केस में अभी आपका टोकन नंबर लेके आपका रिजल्ट वो कंफर्म करेंगे आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया क्या। अगर दिया है वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, क्लियर हो जाएगा और वो असाइनमेंट का भी रिकॉर्ड चेक कर लेंगे। अगर बाय चांस उनके सर्वर पे वो असाइनमेंट का रिकॉर्ड नहीं मिला, आज अगर नहीं मिला तो आपने असाइनमेंट जो है जो आज ही मैंने हाँ आज एक बंदा आया था इंस्टीट्यूट में जिसने असाइनमेंट लिखा नहीं था और बोल रहा था कि मेरा ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, मुझे मार्क, मेरा मार्क किधर गया। तो उसको सीधा सीधा बोला गया है कि आपने, उसने डायरेक्टली बोल दिया मैं असाइनमेंट लिखा नहीं है, मैं ऑनलाइन एग्जाम दिया है, मेरा मार्क किधर है, 0 मार्क दिखा। तो उन्होंने एकदम क्लियरली लिखा है आपका असाइनमेंट नहीं है तो आपको 0 ही मार्क मिलेगा, असाइनमेंट इज कंपलसरी। और आपके केस में आपने और सेकंड थिंग और सेकंड थिंग, कुछ कुछ बंदे ऐसे भी है कि जिसने अटेम्प्ट भी नहीं किया, एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है और मार्क 0 आ गए। तो अभी समझो आपका भी 0 है, मेरा भी 0 है और थर्ड पार्टी का भी 0 है। तो मैंने तो अटेम्प्ट किया है, मेरे को 0 है। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी इसमें क्या बोल रहा है, मैंने भी अटेम्प्ट किया है। तो वो क्रॉस चेक कर रहे हैं, जिसने सीरियसली अटेम्प्ट किया है और जिसने नहीं अटेम्प्ट किया है तो उनके पास एविडेंट है और 10 तारीख को पता चलेगा। अभी असाइनमेंट की अगर बात करेंगे तो असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिशन था जिसपे हमने पीडीएफ फाइल्स मैंने चारों सब्जेक्ट की सबमिट की थी। एक्नॉलेजमेंट मेरे पास थी। और जब मैंने कल बात की जहाँ पे रजिस्टर किया, मेरा नंबर रजिस्टर किया, मेरे सब्जेक्ट बता दिए और मेरा इशू भी वहाँ पे बता दिया, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आपने ऑनलाइन सबमिट किया था असाइनमेंट, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए असाइनमेंट्स को और उसकी प्रिंट निकाल के आप बाय कुरियर हमें भेज दीजिए। जहां तक मैंने उनको पूछना चाहा कि कौन सी लिंक है कि जो लिंक वहां पे अपीयर नहीं हो रही वेबसाइट और वहां पे मैं कहाँ से डाउनलोड करूं, उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। तो ये तो उनकी तरफ से हुआ और बार बार फोन लगाने पर लगता नहीं है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अटेम्प्ट किया तो सीधा आंसर मिलता है, तो ऐसा आंसर मिलता है कि जहाँ पे हमें 10 डाउट्स रहते वो डाउट्स क्लियर होते नहीं है, ये एक बात होती है। तो एनीवे मैंने एक काम किया कि ओरिजिनल्स मैंने मेरे पास रखी है असाइनमेंट्स की, और जो स्कैन कॉपीज थी पीडीएफ उसकी प्रिंट निकाल के मेरा एक एप्लीकेशन उसके ऊपर इशू लिख के एक स्पीड पोस्ट मैंने आज ही करवा दिया है वहाँ पे। मैंने ओरिजिनल मैंने जानबूझ के नहीं दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं जाके ये अगर मिसप्लेस हो गया तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। बराबर है जहाँ और तक इसलिए ओरिजिनल देना नहीं है, इसलिए वो अभी ओरिजिनल जैसा नहीं आपने बोला ले कि रहे ओरिजिनल ले भी नहीं रहे। हम्म। तो ठीक है, अब ये डिस्कशन में मुझे क्लैरिटी आ गई है कि जहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने चारों सब्जेक्ट अपीयर किए थे, ऑनलाइन एग्जाम दी थी, ऑनलाइन असाइनमेंट का सबमिशन किया था, और अगर असाइनमेंट का इशू भी है कोई तो भी मैंने कुरियर तो अभी कर दिया है। तो लेट्स होप, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में 0 स्कोर है मेरा। नहीं हो जाएगा गुरु, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। और उनकी अभी कोशिश है कि ये जो भी कम्युनिकेशन गैप है विद इन स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूट उसको कम कैसे किया जाए, ठीक है। तो जो आपको वरी है और आप कॉन्फिडेंट जो लग रहा है कि आपने जो किया है उससे मुझे भी अभी कॉन्फिडेंट है कि आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आप जो बता रहे थे कि स्टूडेंट की तरफ से जो गलतियां होती है उसमें नंबर ऑफ लिस्ट बताई आपने कि मेंबरशिप गलत लिखा जाता है या क्लियरली विजिबल नहीं रहता है, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, फ्रंट कवर पेज लगाया नहीं जाता है, उसके ऊपर अच्छे से लिखाया नहीं जाता है, कॉपी या जेरोस वगैरह लेता है। वैसा मेरा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट जैसा आई एम आल्सो कॉन्फिडेंट। आप इतना बोल रहे हो ना, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, सब आप इतना बोल रहे हो ना, तो मुझे भी 100% सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, ये ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है मेरा 3 सब्जेक्ट का 0 आ गया, वो 100% सॉल्व होने वाला है प्रॉब्लम। बट जिनियन जिसका ओरिजिनल प्रॉब्लम उसका हो जाएगा। इसमें कुछ बंदे ऐसे भी है जिसको 0, उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया, अभी वो भी क्लेम कर रहे हैं कि मुझे भी मार्क चाहिए, तो उसमें वो वेरीफाई करेंगे और 10 तारीख को रिजल्ट लगाएंगे। डोंट वरी। आपसे बात करके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, लेकिन आपने जैसा विजिट करके पर्सनली सभी चीजों को फील किया है या देखा है, तो वो एक्नॉलेजमेंट आपके पास है, वो एक्नॉलेजमेंट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कॉन्फिडेंट था। डोंट वरी। हम एक बंदा नहीं थे, हम सर के साथ हम 10 बंदे थे और हम मॉक में ज्यादा लोग जाने की वजह से उनको सब डिक्लेयर उन्होंने किया है, उनके साथ हम बैठे थे, हमने आधा घंटा बाद भी किया, सर ने 1 घंटा बात किया उनसे
और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है 100%। जिसका रिजल्ट ओके उसको ओके ही मिलेगा। और हम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि बाद में उनको भी लोगों को ये करना है, एडमिशन लेना है, तो उनके लिए भी अच्छा है। और ये उनको उनसे पास नहीं हो जाएगा, रिजल्ट ओके आ जाएगा 10 तारीख तक। जहीर भाई के पास ओके ओके के बाद सबके नंबर मिलेंगे अपने वाले। ओके ओके। Anything else? Hello, sir. Good evening. Good evening, Himani. सर एक्चुअली मेरी जो क्वेरी है वो थोड़ी डिफरेंट है, बोलो, पूछिए। बिकॉज मेरा भी रिजल्ट में वैसे 2 सब्जेक्ट से में मेरे भी 0 नंबर आए हैं एंड बाकी 2 में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर हैं। लेकिन Okay. मेरी क्वेरी ये थी सर, जो मेरे को असाइनमेंट्स की एक रिजल्ट शो जो होता है आप साइट पे डालते हैं, तो मेरी उसमें मेंबरशिप जो नंबर है वो अलग आया है। एक्चुअली मेरा मेंबरशिप नंबर जो था वो अलग आया, उससे थोड़ा सा हटके उसमें आया था, मेंशन हुआ था, लेकिन सब्जेक्ट सेम थे, नेम सेम था, और असाइनमेंट्स ऑब्वियसली बात है सबमिट करी उसके हिसाब से मैंने उसे कंसीडर किया। सो मेरे रिजल्ट के मुझे लगता है जहाँ तक, बिकॉज मेरा मेंबरशिप नंबर का वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें अलग आया है, मेरे पास जो एक्चुअल में कार्ड है उसमें जो वो अलग है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ सर ऐसा हो रहा है, मैंने बी सेक्शन के लास्ट अटेम्प्ट दिए हैं इस बार, 4 जो बचते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई मेरा इस तरह का रहा है। मैंने ट्रिपल आई में कॉल भी किया बहुत बार, बट वो उनका नंबर नहीं लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या रीजन है। तो सर मेरा ये क्वेरी थी, मुझे इस वजह से लगता है कि शायद मेरा रिजल्ट 2 सब्जेक्ट्स का नहीं आ पाया है, बिकॉज मेरा मेंबरशिप का नंबर भी गलत आया था जब मेरे असाइनमेंट्स का रिजल्ट आया था सर। ओके हिमानी, आपका प्रॉब्लम टोटली डिफरेंट है। मैंने आपको चैट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भेजा है, तो अभी जो आपने मुझे बताया, तो जो नंबर आपका एक्चुअल मेंबरशिप नंबर क्या है वो मुझे मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे भेजो। साथ ही साथ में जो आपने जहाँ पे देखा कि आपके नाम सही है पर लेकिन मेंबरशिप नंबर गलत दिख रहा है, वो स्क्रीनशॉट अगर निकाल के मुझे भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, Yes, दैट sir. विल बी वेरी हेल्पफुल। और ये चीज जो है ना यूनिक है, डिफरेंट है, तो मैं Yes, sure, sir. तो जरूर मैं इसके बारे में ना बात करता हूँ और आपको पर्सनली रिवर्ट करूंगा। ठीक है मैम, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि मेरे से डिले हो जाए, ऐसा हो सकता है, पर डेफिनेटली दिस इज डिफरेंट और ये प्रॉब्लम दूसरे बंदे के साथ ना हो, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, सो डोंट वरी हिमानी, आपको मेरा नंबर मिला है, चैट बॉक्स में देखो मैंने आपको। Of course, yes, sir. ओके, मिल गया मुझे नंबर उस सर नंबर आपका। पे आप मुझे आपका प्रॉब्लम भेज दो। मैं अगर फोन पे नहीं रहा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको बाद में फ्री रहूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? श्योर सर, मैं आपको, नो सर, बस मेरा यही क्वेरी था, अगर इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आई थिंक मेरा रिजल्ट पॉजिटिव ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट। और एक थिंग है हिमानी, आपने ऑनलाइन सबमिट किए थे सब पेपर्स? ऑनलाइन एग्जाम? ऑफ कोर्स सर, मैंने ऑनलाइन 4 एग्जाम्स अपने सबमिट करे थे एंड 2 का मेरा रिजल्ट आ गया है, जो फर्स्ट 2 मैंने दिए थे, एंड बाकी मेरे 2 एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आया है। तो आई थॉट मे बी शायद ये ही एक बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि शायद मेरा रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है। बाकी सबमिट तो मैंने 100% करे ही करे थे। ठीक है, और असाइनमेंट में भी आपने दिए है खुद लिखे हुए? ठीक है, बराबर ना? यस ऑफ कोर्स सर, मैं तो ये सर मैंने खुद ही दिए थे ऑफ कोर्स नहीं, मैं असाइनमेंट्स। कैसा स्टूडेंट से जो भी है वो क्लियर लेना चाहता हूं, ताकि उस तरह से मैं आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके इंस्टीट्यूट से बात करूंगा। सो डोंट वरी, अपन पर्सनली बात करेंगे, मैंने नंबर भेजा है। एनीथिंग एल्स? श्रीकांत, सुशांत माड़ी, रत्ना गुप्ता, मंदार, अनीता? हेलो, गुड इवनिंग सर। ओके, तो एक बार ना मुझे एक हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ रत्ना जी बोलिए। जी सर, मेरा भी ये इशू है सर। मेरा एक एग्जाम का रिजल्ट मेरा 0 मार्क शो कर रहा है। बाकी जो मेरे 3 सब्जेक्ट वो मेरा ऑल क्लियर है। ग्रेट, तो आपने ऑनलाइन एग्जाम मैंने दिया? सर असाइनमेंट भी सबमिट की। हाँ, अरे जी आपने सर, मैंने ऑनलाइन एग्जाम भी दिया, स्क्रीनशॉट है। जी बोलिए। आपने ऑनलाइन एग्जाम सबमिट किया विद इन टाइम? एंड सर, जी सर मैंने सबमिट किया था, बट मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि अगर नेटवर्क इशू की वजह से मेरा सबमिशन नहीं हो पाया होगा, वो अनदर थिंग है। बट मैंने अपनी तरफ से सर पूरा 100% मैंने सबमिट किया है सर एग्जाम, और मेरे 3 एग्जाम्स मेरे क्लियर भी हैं, बस मुझे एक ही एग्जाम में इशू है सर। ठीक है, इवन सर मैंने कॉल भी की, ट्रिपल आई में मेरी बात भी हुई, मैंने अपना इशू भी रेज किया, और मैंने स्क्रीनशॉट भी उन्हें मेल पे सेंड किया था, बट मुझे वो उस मेल का बैक रिवर्ट आया कि
रिसिपिएंट का इनबॉक्स फुल हो गया है, इस वजह से उसका मुझे बैक रिवर्ट आया, तो शायद मे बी वो मेल उन्हें डिलीवर्ड हुई है या नहीं, उस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ सर। बट मैंने हर चीज़ का उन्हें असाइनमेंट की भी मेल करी है और स्क्रीनशॉट का भी मेल किया है। बाय लक मैंने उस टाइम एग्जाम देते हुए मैंने स्क्रीनशॉट लिया था सर। ओके, मैं आपको एक मेल आईडी भेज रहा हूँ जो एक्चुअल III का मेल आईडी है, जो फेल नहीं होगा, आपकी मेल जाएगी। और अगर आपके पास स्कैन कॉपी है उसकी प्रिंट आउट लेके कुरियर कर दो, 2 दिन में पहुंच जाएगी। डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यस कुछ? सर, मैंने आज ही असाइनमेंट मैंने कोरियर की है सर। दैट्स ग्रेट, डोंट वरी देन, डोंट वरी। तो मैं मेल आईडी नहीं देता, ठीक है। ओके सर, फाइन, इसका रिस्पॉन्स ओके 10 तारीख तक आ जाएगा, डोंट थैंक वरी। यू सर। एनीथिंग एल्स? मंदार, ओके अनीता? अनीता को No, उसकी sir, no doubt. नो डाउट यू आर वरीड अबाउट योर वाइवा एग्जाम, राइट ना? Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके। मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो मुझे सबके कैमरे ऑन चाहिए। कैमरे मिल सकते हैं ऑन? हो सकता है 2 मिनट के लिए? ये सर। ये जो भी चीज है, जो भी वीडियो अभी हमने किया है, वो वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा ताकि सब लोगों को इस चीज का अवेयरनेस हो जाए। और जिन जिन लोगों ने सेशन अटेंड नहीं किया तो उन लोगों को सपोर्ट मिले। और मैं और एक चीज कर रहा हूँ कि जो जो पेन एरिया है स्टूडेंट लोगों के, उस पेन एरिया को एड्रेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक लिंक मैंने बनाई है, जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाला हूँ, ताकि लोगों को वो लिंक ओपन करके वो डाटा अपडेट कर सके। और अगर आपको III की रिलेटेड या प्रोजेक्ट वर्क की रिलेटेड या असाइनमेंट या कुछ भी इशू अगर आता है, तो यू कैन बी इन टच विथ मी, डेफिनेटली विल गेट सम सपोर्ट फ्रॉम माय साइड। कई बार ऐसा होगा कि ऑफिस वर्क की वजह से मैं इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू एंड आई विल रिवर्ट यू बैक। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, just 1 minute. चलो, थैंक यू टीम। कुछ रहेगा तो मैं अपडेट करता हूँ ग्रुप में। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।